This is Ms. Shiba Khan from Biotechnology Department of Government Girls PG College, Ujjain. Today I am going to teach you about the cell. आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कोशिका क्या होती है. So the fundamental unit of life is not an atom, ion or molecule. Although these particles are present in non-living as well as in living bodies. To understand the difference between living and non-living substances, a knowledge of the cell is very essential. The ions and molecules are precisely arranged in the cellular structure of an organism to provide the environment and organization for running the life processes in order. The cell itself is considered to be the basic structural and functional unit of life, as it is the smallest unit of all living organisms capable of carrying out all the activities which are necessary for the life. What is the meaning of cell? So as we already seen that the all living organisms are made up of cells. This is the structural and functional unit of life. This is the building blocks of living organisms. It shows the independent existence, which means that it performs all the essential functions of life it can perform. And अगर हम सेल के आधार पर अगर हम देखें या on the basis of cell, when we categorize the organisms, so we can categorize into the two categories. First is unicellular organism, second one is multicellular organisms. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स कोशिका. ओके, सो जब एक कोशिका, जैसे कि हमने देखा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एक कोशिका जो है वो लाइफ के जितने भी जो आवश्यक कार्य होते हैं उनको परफॉर्म करने में सक्षम होती है, कैपेबल होती है. तो जब एक सेल अपने आप में कंप्लीट होती है और जितने भी जो लाइफ प्रोसेस है उनको करने के लिए सक्षम होती है, तब हम उस कंडीशन में कहते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को दैट इट इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जस्ट फॉर एग्जांपल द बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड सम अलगा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी मीन्स मेनी या बहुत सारे, सेलुलर मीन्स कोशिकी. जब बहुत सारी कोशिकाएँ मिलके एक ऑर्गेनिजम्स का या एक लिविंग सिस्टम का निर्माण करती है, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि द ऑर्गेनिज्म इज multicellular. Okay, so just for example that in higher fungi, plants and animals, they are the multicellular organisms. अगर हम ह्यूमन बॉडी की केस की बात करें, जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बॉडी या एक इंडिविजुअल का निर्माण करती हैं, तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की केस में देखें तो ह्यूमन बॉडी हैव अबाउट 1 ट्रिलियन सेल्स. द सेल is the complete unit of metabolism because it has all the chemicals and physical factors which are necessary for its growth and maintenance, which means that all the cells are made up of from the same major classes of organic molecules such as nucleic acids, proteins, carbohydrates and lipids. A cell may be defined as a unit of protoplasm bounded by a plasma or cell membrane and possessing a nucleus. Protoplasm is the life-giving substance and includes the cytoplasm as well as the nucleus which is regarded as the main regulatory center of a cell. But every cell has the three major components. First is plasma membrane, which work as a सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर की तरह ये काम करती है, जो कि अपने अंदर या बाहर जो है वो कुछ सेलेक्टिव ही मॉलिक्यूल्स और आयंस को अपने अंदर से आर पार जाने देती है. ओके, सेकंड इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो कि घिरा हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. सो व्हाट इज़ द साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म में वेरियस काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स आते हैं और वाटर कंटेंट जो है ये मिलके जो है क्या बनाता है, एक साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य. थर्ड वन इज डीएनए. डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए इन केस ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स जो कि नेकेड होता है. व्हाट डज इट मीन्स दैट नेकेड इन बैक्टीरिया? सो इसका मीनिंग है
कि इनका जो या प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाला जो डीएनए है, ये डीएनए किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड या घिरा हुआ नहीं होता है। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो इनका जो डीएनए है वो मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम सेल की डिस्कवरी की बात करें तो 1665 ईस्वी में सबसे पहले जो पर्सन थे जिन्होंने कि कोशिका के बारे में बताया वो थे रॉबर्ट हुक, who first discovered the cell in a piece of cork. So what is the piece of cork? It is the bark of a tree, and he shows that it composed of tiny compartments by using a compound microscope of his design, and he called these compartments, these small holes, as cells. So it means that he also coined the word cell. Antony van Leeuwenhoek, which is second person who discovered the cell. But what is the difference between that के सेल की कोशिका की अगर हम खोज की बात करें तो सबसे पहले किसने बताई? रॉबर्ट हुक ने बताई या फिर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने? तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल सबसे पहले जिसके बारे में बताया था तो वो कोशिका डेड कोशिका थी, ना कि लिविंग कोशिका, ये जीवित कोशिका नहीं थी। जबकि जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो आए या जो सेकंड साइंटिस्ट थे तो ये बने सबसे पहले पर्सन जिन्होंने कि लिविंग सेल के बारे में हमें बताया अंडर द माइक्रोस्कोप एंड नेम देम एज एनिमल्क्यूल्स. So the Antony van Leeuwenhoek was the first person who discovered living cells under microscope and named them animalcules. Animalcules, which means that little animals. Cell theory. So in 1839 शेल्डन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे एंड शॉन जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को बनाया या सेल थ्योरी को दिया, कोशिका सिद्धांत को दिया। कोशिका सिद्धांत जो कि डॉक्टराइन नाम से भी जाना जाता है, सेल थ्योरी डॉक्टराइन नाम से भी जाना जाता है। एंड रुडोल्फ वर्चू जो कि थर्ड पर्सन थे जो कि जिन्होंने की जो शेल्डन एंड शॉन के द्वारा दी गई जो हाइपोथेसिस थी, जो परिकल्पना थी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए और उन्होंने एक नई थ्योरी को दिया। इस थ्योरी को कहा गया मॉडर्न सेल थ्योरी। सो व्हाट द मॉडर्न सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सेल थ्योरी, all living things made up of one or more cells. As you can see that, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो यूनिसेलुलर हैं वहाँ पे एक कोशिका जो है कंप्लीट कोशिका अपने आप में परिपूर्ण होती है सभी कार्यों को करने के लिए, और उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। ओके, इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलके एक लिविंग सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो एक सेल, अब इस सेल में डिवीजन होगा और इस सेल में डिवीजन के बाद मतलब कि कोशिका विभाजन के बाद एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनेंगी। बहुत सारी सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स या मास ऑफ सेल मिलके क्या कहलाएंगे? टिश्यू या ऊतक। और फिर ये जो है ऊतक ये मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। एज यू कैन सी हियर द हार्ट, ब्रेन और लिवर, तो ये ऑर्गन या अंग बनाते हैं। और ये इस तरह से बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं ये ऑर्गन मिलकर एक क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं या एक लिविंग सिस्टम का निर्माण करते हैं। ओके, तो अगर हम इसको देखें कि जो सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इट इज़ अ सेल। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इट इज़, एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम pre-existing cells by their division, as I explained you, and the cells contain hereditary material which is of DNA and which is transferred from cell to cell or generation to generation. Okay,
and all the cells have basically the same chemical composition and energy flows within the cells. A single cell is often a complete organism in itself, such as bacterium or yeast, and the bacteria have neither well-defined cell organelles nor a nucleus, and other cell acquires specialized function as they mature. So these cells cooperate with other specialized cells and become the building blocks of large multicellular organisms such as human and other animals. Although cells are much larger than atoms, they are still very small. The smallest known cells are a group of tiny bacteria called the mycoplasmas. Some of these single celled organisms are sphere as small as, मतलब इनमें से अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, जैसे कि सबसे छोटा जो ऑर्गेनिजम्स है प्रोकैरियोट्स में, दैट इज ऑफ माइकोप्लाज्मा. ओके, तो ये गोलाकार होते हैं, स्फीयर शेप्ड होते हैं, और इनका जो अगर साइज़ की बात करें तो कितना डायमीटर होता है, इनका व्यास होता है 0.2 माइक्रोमीटर जो है इन डायमीटर, एंड 1 micrometer is about 0.00039 inch, and with a total mass of 10 to the power minus 14 gram, which is equal to that of 8 billion hydrogen atoms. And cells of human typically have a mass 4 lakh times larger than the mass of a single mycoplasma bacterium. But even human cells are only about 20 micrometer across, and it would require a sheet of about 10,000 human cells to cover the head of a pin. So आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी जो हैं वो cells होती हैं, and each human organism is composed of more than 3 trillion cells. The nature and the function of cells. So the cell is enclosed by a plasma membrane. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेल होती है वो घिरी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि प्रोटेक्टिव लेयरिंग का या कवरिंग का काम करती है, एंड which forms a selective barrier that allows nutrients to enter and waste products to leave from it. The interior of the cell is organized into many specialized compartments or organelles, and each surrounded by a separate membrane. Okay, so as you can see here, आप देख सकते हैं जिस तरह से इस पिक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये किससे मिलके बनी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है, प्लस प्रोटीन से मिलके बनी होती है. ओके, अब ये जो आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो है, अब प्रोटीन के हमने कहा कि फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलके बनी होती है, प्लस साथ ही साथ प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स में जो है वो इंटीरियर वेरियस इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है वो पाए जाते हैं. ओके, एंड साथ ही साथ इसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच्ड होते हैं, जो कि एज अ रिसेप्टर्स की तरह जो है वो काम करते हैं. ओके, सिग्नल मॉलिक्यूल्स की तरह जो है वो काम करते हैं. सो दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, दैट एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है, किससे मिलके बनी होती है. दिस इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन. इसके बारे में जो है हम आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो है वो देखेंगे. एंड वन मेजर ऑर्गेनल, द न्यूक्लियस, कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. तो मेजर जो ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें कि जो मुख्य कोशिकांग है कोशिका का, दैट इज़ ऑफ नाभिक केंद्रक या न्यूक्लियस, जिसमें कि आनुवंशिक सूचनाएं पाई जाती हैं जो कि एक कोशिका की वृद्धि के लिए, साथ ही साथ उसके प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होती है. एंड ईच सेल कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस, वेयर इज अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स are present in multiple copies in the cellular contents or the cytoplasm. As you can see here, this is the nucleus, which has the nucleolus in it, and which is covered by a membrane which is of bilayer membrane. Okay,
एंड फर्स्ट इज आउटर न्यूक्लियर, ये जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती हैं बाहर वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दैट इज ऑफ नोन एज दी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इनसाइड वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड द स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स आर नोन एज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस, okay, in which a fluid is present in it, okay, and the nucleoplasm, so the fluid which is filled inside the nucleus is known as the nucleoplasm, and you can see here the chromatin bodies जो कि इसके अंदर पाई जा रही हैं, okay, chromatin this is the genetic material, okay, so this is about the nucleus, and organelles, other organelles include the mitochondria which are responsible for the energy transactions which is necessary for the cell survival, okay, तो कोशिका के सर्वाइवल के लिए या उसके बचे रहने के लिए एनर्जी की, जिस तरह से हमें चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, वैसे ही सेल को काम करने के लिए वेरियस जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि उसे मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ अ सेल भी कहलाता है। Lysosome, second lysosome, which digests the unwanted material within the cell. Lysosome जो है which is also known as the suicidal bags या आत्महत्या की थैली जो है वो कहे जाते हैं। Why we call these lysosome as suicidal bags? Because इनके अंदर जो है various hydrolytic enzymes पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनसे भी मतलब जिस भी सेलुलर ऑर्गेनल्स को अगर ख़त्म होना है, या जैसे कि हम बात करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का जो है एक लाइफ स्पान होता है, जितने की समय तक या जितने टाइम तक वो जीवित रहेगा या ज़िंदा रहेगा, और उसके बाद जो है उसको मरना है, मतलब उसका लाइफ का एंड जो है होना वो निश्चित है। तो वैसे ही अगर हम सेल की बात करें तो सेल जो है सेल भी एक टाइम के बाद पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद उसका जो है उसको ख़त्म होना होता है, या वेरियस अगर सेल में कोई डिफॉर्मिलिटीज़ हो जाती हैं, ओके, तो उसको सेल को ख़त्म होना होता है, तो उसके लिए सेल के खात्मे के लिए जो है यहाँ पे लाइसोसोम्स जो है वो काम करते हैं। तो जिस सेल को ख़त्म होना होता है, सेल की डेथ करवानी होती है, वो सेल लाइसोसोम से जाके जुड़ जाती है, और उसके अंदर लाइसोसोम के अंदर जो पाए जाने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं उस सेल के ऊपर, और फिर वो उस सेल का जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो कि क्या करेंगे कि इस सेल को वेरियस स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में जो है वो डाइजेस्ट कर देंगे, और इस तरह से एक सेल की जो है वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ओके, सो लाइसोसोम विच डाइजेस्ट द अनवांटेड मटेरियल within the cell and the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus, which plays important roles in the internal organization of the cell by synthesizing selected molecules and then processing, sorting and directing them to their proper locations. In addition, the plant cells contain chloroplast. साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सेल में और कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, तो अगर हम बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या गोल्गी एपरेटस है या लाइसोसोम्स है या न्यूक्लियस है, तो ये दोनों में ही पाए जाएंगे, आपके प्लांट सेल में, पादप कोशिका में, और एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में, दोनों में ही पाए जाते हैं। लेकिन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स? तो एक डिफरेंस का पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है, वो ये है कि प्लांट में या प्लांट की जो सेल है, पादप कोशिकाओं में एक और ऑर्गेनल पाया जाता है, दैट इज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल सेल में नहीं मिलता। ओके, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है या आवश्यक है, उत्तरदायी है, वेयर बाय द एनर्जी ऑफ सनलाइट इज यूज टू कन्वर्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द कार्बोहाइड्रेट या शुगर। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा ही है कि जो CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल फॉर्म द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दैट इज ऑफ C6H12O6, एंड जो है ऑक्सीजन विच इज़ रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट, और जिस ऑक्सीजन को जो है हम यूटिलाइज करते हैं फॉर आवर सर्वाइवल। ओके, सो दिस क्लोरोप्लास्ट विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली, ना कि एनिमल सेल में। ओके, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स,
So approximate chemical composition of a typical mammalian cell, when we see that the component which are present inside the cell and in in how much percentage या कितने परसेंटेज में जो है ऑफ टोटल सेल वेट जो है ये पाए जाते हैं. तो अगर हम वाटर की बात करें विच इज़ मेजर कंपोनेंट्स है ऑफ द सेल विच इज़ ऑफ प्रेजेंट इन 70%. ओके, 70% तक पानी जो है वो सेल में पाया जाता है. और अगर हम वेरियस इनऑर्गेनिक आयंस की बात करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, तो ये जो है वो कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं? 1% ऑफ टोटल सेल वेट. और अगर हम वेरियस मिसलेनियस स्मॉल मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं तो दे आर प्रेजेंट एट 3%. एंड प्रोटीन्स, सो 18% प्रोटीन्स जो है वो पाए जाते हैं. आरएनए जो है वो 1.1% तक जो है आरएनए पाए जाते हैं. और अगर हम डीएनए की बात करें तो 0.25% ऑफ टोटल सेल वेट तक जो है डीएनए वो पाया जाता है. एंड फॉस्फोलिपिड्स एंड अदर लिपिड्स सो 5%. थैंक यू. दिस इज ऑल अबाउट द सेल. कोशिका क्या होती है और किस प्रकार से या किन किन ऑर्गेनल से जो है ये मिलके बनी होती है, ये हमने जो है आज देखा. इसके बारे में डिटेल में एक एक ऑर्गेनल्स के डिटेल के बारे में जो है वो हम आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.